a particular row of flower that called inflorescence. Parts of flower. Flower types on the basis of calyx, corolla, androecium in respect to the ovary. Different four parts we can say. The first calyx, second corolla, third is androecium, and fourth is gynoecium. If calyx, corolla, and androecium are generally fused in respect to ovary, so this is the part of flower by which we can say that there are different three flowers, types of flower: hypogynous, perigynous, and epigynous. Come to this definition on the parts of flower or types of flower on the basis of calyx, corolla, androecium in respect to ovary. This is the ovary portion. Ovary portion, the calyx here, this is the portion calyx, rolo, this is corolla, this is androecium. So ovary remain here, सबसे ऊपर, androecium, then corolla, then calyx. So ovary remain, if ovary remain just upside, up stretch to the other insertions like calyx, corolla and androecium, such kind of particular flower called hypogynous. Hypo means होता है lower, gynous means होता है means corolla, calyx, corolla and androecium. तो ओवरी ऊपर की तरफ रह गई और एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम नीचे की तरफ है. Such types of ovary called superior ovary, and such kind of flower that is called hypogynous. Example: China rose, mustard, pea plant also is the example of such types of plant, such type of flower. Pea flower, right? Second, epigynous. If the ovary remain in a lower side in compared to the calyx, corolla, androecium, ovary नीचे की तरफ रह गई और बाकी से सारे के सारे हैं वो रोल्स कहाँ है, ऊपर की तरफ. Like this, calyx, this is corolla, this one is androecium. So androecium, corolla and calyx are situated or adjusted in respect to ovary in upside, ovary in a lower side. So ovary remain in a lower side. This is ovary in a lower side. This is the calyx, then corolla, then androecium remain in a upside of the ovary. Such kind of ovary called lower ovary or inferior ovary. This is called inferior ovary. Such kind of flower that called superior flower or epigynous flower. Epi means upside or gynous means calyx, corolla and androecium. So apex. So calyx, corolla and androecium ovary के compare में ऊपर की तरफ है. Such kind of flower called superior flower or epigynous. Half-half conditions, perigynous, half-half condition. Example is sunflower here. The half-half conditions. Here the particular insertion, ध्यान रखना जो जितने भी flowers होते हैं एक कनेक्शन पे डिपेंड रहते हैं, दैट्स कनेक्शन पे कनेक्ट रहते हैं, दैट्स कॉल्ड पिटियोल. और पिटियोल का सबसे आगे वाला हिस्सा जो इन सभी चारों रोल्स को फ्यूज करके रखता है, दैट फ्यूजन कॉल्ड थैलेमस. This is thalamus, and this one thalamus. This thalamus is cup shaped. At the corner of cup shaped thalamus, here calyx, corolla and androeciums are arranged. So ovary is not so lower. Also calyx, corolla and androeciums are calyx, corolla and androeciums are not so lower condition. They are parallel at the corner sides. So ovary बराबर आ रहा है, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम भी सब बराबर में आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पेरीगैनस. पेरी मीन्स द थैलेमस इज सराउंडिंग द ओवरी, द थ्री साइड्स. ओवरी को थ्री साइड से सराउंड कर रहा है, 1
2 and 3 sides. Such kind of flower are called perigynous. Such types of ovary, ये ovary हो गया. इस ovary के side by side calyx, corolla and androecium. These are the fused condition. Such kind of ovary, that's kind of the ovary call, यहाँ पे mention कर लेंगे, ovary will be semi superior, not so completely superior. This is semi superior. Examples are rose and peach. These are the example of flower, right? Here the hypogynous flower, the superior ovary mention is this, like perigynous flowers, semi superior ovary they have represented in this form. Epigynous, in which the inferior ovary is mentioning or denoted by this like structures. Parts of flower, calyx and corolla are accessory rules. Calyx made up of sepals, and sepals are green color, distinct from corolla. This is outermost rolls. If they are free, polypetalous. If they are fused, gamosepalous. Generally, calyx are represented by K. K if they are 4 positions, free position, and if they are fused position. Second roll, corolla, mentioning by the capital C. Petals, made up of petals. These are colorful, distinct from the calyx. This is the second outermost roll of the flower. If they are free in positions, polysepalous, polypetalous. If they are fused position, they are called gamopetalous. The third roll, androecium is the third roll of the flower. It is made up of stamens. So components of androecium is stamen. This is the third roll. Video clear नहीं आ रही, log out करके log in करो बच्चा. Androecium is the third roll of the flower that made up of stamens, and each stamens have a different two parts, anther and filaments. Distincted from the calyx and corolla, androeciums and stamens are distincted. Androeciums are attached. If they are attached with the petals, that condition will, that terms will be epipetalous, और epipetalous को इस तरह से fuse करके बताया जाएगा. That is the theme. Star point, stamens are responsible for the formation of pollen grains. If any stamens are if any stamen does not involve in a formation of pollen grains, such kind of stamen called sterile stamens are known as staminoid. Example, pea plant have a 1 stamens out of 10, that called staminode, right? Stamens or androecium may be free or may be jointed. If they are free, that condition, that term will be, should be there, polyandrous. If they are jointed to the particular androecium to the androecium, that will be the condition gamoandrous. By making their jointed, if they are founded in a one cluster or bundle form, that called monodelphous. Monoadelphous, that called China rose. China rose में इस तरह से mention किया जाता है. If they are founded in a cluster or a bundle of 2 bundles, diadelphous. Pea plants, androecium 1 plus 9 or 9 are fused in a condition pea plant. More than 2 bundles, polyadelphous. Example, citrus, lemon and orange is the example of that idea, right? Move to the next point, that is gynoecium. एक बीच में स्टार पॉइंट रह गया है, वो स्टार पॉइंट पहले ही लिखेंगे अपन. जहां पे भी आपको स्टार पॉइंट बताया जाता है वो आपकी नीट एग्जाम और फाउंडेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको अलग से हाईलाइट करके लिखा कीजिए. कहीं पे भी लिखना हो आपको नोट्स को तो इस पोजीशन में स्टार पॉइंट लगा लें आप, स्टार पॉइंट, और नोट करके लिखें इसको. If sepals if calyx and corolla are not distincted, उस कंडीशन के अंदर कौन सी टर्मोलॉजी काम में लेते हैं? उस कंडीशन के अंदर टर्मोलॉजी लेंगे हम, उस कंडीशन के अंदर टर्मोलॉजी लेंगे टापल.
इपीफेलस और टापल, एक सेकंड मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरे को देख लेने दीजिए प्लीज. दैट कंडीशन विल बी सेपलस, पॉलीसेपलस, कोरोला, पॉलीपेटलस, पेटल्स, perianth, P, tuple, petulus, androecium, epiphyllus, tuple. If the calyx and corolla are not distinctly formed, that condition will be टापल. उस कंडीशन को हम बोलेंगे टापल. ठीक है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल लेंगे इलियम प्लांट, इलियम फैमिली, इलियम फैमिली, लिलिएसी फैमिली, सॉरी लिलिएसी फैमिली. और लिलिएसी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल हो जाता है अनियन. अनियन में कैलिक्स और कोरोला दोनों डिस्टिंक्टेड नियस कंडीशन में उसको टापल कहेंगे. यदि वो टापल फ्री है तो उसको कहेंगे फ्री पोजीशन के अंदर पॉली टैपलस. If they are jointed in form, that gamotapalus. इसको मेंशन करने के लिए टर्मोलॉजी क्या काम में लेते हैं, कैपिटल टी. सपोज कीजिए फ्री हैं सारे के सारे कैपिटल टी में, 4 के 4 टैपल, और इस तरह से जॉइंटेड है तो उसको 4 को आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए लाइक दिस. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गाइनोशियम, गाइनोईसियम. गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जी काम में लिया जाता है, ध्यान रखना, कैपिटल जी. द कंपोनेंट्स ऑफ गाइनोसियम कॉल कार्पल, आल्सो नोन एज पिस्टिल. पिस्टिल, इसको पिस्टिल से भी इंडिकेट किया जाता. ठीक है. Carpel only one carpel present in any gynoecium, such condition called unicarpellus. Unicarpellus or unicarpellary, unicarpellary flower. 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 5 देन मोर देन 5. तो मोर देन 5 वाली पोजीशन के अंदर क्या यूज करेंगे, पॉली कार्पेलस और पॉली कार्पेलेरी, कार्पेलेरी. उसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका बाइकार्पलस, इधर हो गया ट्राइकार्पलस, इसको हो गया टेट्राकार्पलस और इसका हो गया पेंटाकार्पलस. इससे ज्यादा होता है तो उसे पॉलीकार्पलस कह सकते हैं. इससे ज्यादा इन केसेस ऑफ द कार्पल मोर देन वन, इस पोजीशन के अंदर कार्पल्स फ्री भी हो सकते हैं और अदर्स हैं वो फ्यूज भी हो सकते हैं. यदि वो फ्री कार्पल्स हैं, फ्री कार्पल्स, इफ दे आर फ्री कार्पल्स, उनमें फ्री कार्पल्स है, उस कंडीशन के अंदर उसको क्या बोलेंगे, फ्री कार्पल्स है तो उसको बोलेंगे हम एपोगाइनस. टर्म चेंज होगी, ये ध्यान रखना, एपोगाइनस. इफ दे आर अ फ्यूज इन पोजीशन दैट कॉल्ड सिनगाइनस, सिनगाइनस. तो एपोगाइनस एंड सिनगाइनस इस तरह से यूज किया जा सकता है. और क्या हो सकता है, गाइनोशियम. एपोगाइनस को और टर्मोलॉजी के रूप में कहा जाता है एपोकार्प, और इसको बोल सकते हैं सिनकार्प, एपोकार्प एंड सिनकार्प. स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, हरी अप. है ना, एक करेक्शन दे देना, एपोकार्पस पूरा वर्ड लिखिए, एपोकार्पस, और इसको हो गया एपोसिनकार्पस. अब इनको मेंशन कैसे करेंगे, जैसे फ्री वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, फ्री वाले में एपोकार्पस कैसे शो करेंगे. सपोज कीजिए एपोकार्पस में 2 कार्पल्स हैं, तो 2 कार्पल्स में आप देखिए जी आपने मेंशन किया, उसके अंदर 2 लिखा, 2 के 2 फ्री हैं. इस पोजीशन के अंदर आप इसके लेग्स के अंदर 2 के 2 फ्री हैं,
तो 2k2 फ्री होते तो आप इस तरह से लिख रहे हो, इस तरह पोजीशन ओवरी सुपीरियर हो गई। तो ओवरी सुपीरियर टू कार्पलरी, राइट, एपोकार्पस पोजीशन कहेंगे इसको, टू कार्पलरी, राइट। तो ये कहेंगे हम बाई कार्पलरी, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस टाइप्स ऑफ फ्लावर और गाइनोशियम। फ्यूज पोजीशन हो उस पोजीशन में हम बोलेंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस, सिनकार्पस को कैसे मेंशन करोगे? ओवरी सुपीरियर सपोज कीजिए, हमने तो केवल आइडिया लिया ओवरी सुपीरियर है, उस पोजीशन के अंदर आप स्लैब पे लगा दोगे इस तरह से। अच्छा, ये जो स्लैब है वो 2 पे भी लगा सकते हो। इस तरह से देखा जाए तो ओवरी, जैसे सपोज कीजिए ओवरी सुपीरियर ओवरी है तो कार्पलरी 2 हो गई, उसके स्लैब के ऊपर की तरफ है और सिनकार्पस से जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन के अंदर आप इस तरह से मेंशन करोगे। दैट्स लाइक वी कैन से दिस इज द सिनकार्पस, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, सिनकार्पस पोजीशन, राइट। ध्यान रखना है यहां पर किसी भी ओवरी में सिनकार्पस और एपोकार्पस वाली पोजीशन हो तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? सपोज कीजिए कि यहां पर स्टिग्मा इस तरह से बनी हुई है, स्टिग्मा इस तरह से बनी हुई है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि अंदर की तरफ कितने पोर्शन हो जाएंगे? 2। यदि मैं ये बात करूं तो यहां पर देखिए आप कार्पल्स में ओवरी भी 2 हो गई, स्टिग्मा भी 2 हो गया और स्टाइल भी, स्टिग्मा भी 2 हो गया और स्टाइल भी 2 हो गया। ये स्टिग्मा है और स्टाइल है और ये ओवरी है, सब 2-2 है पर फ्यूज हो चुके हैं। इस पोजीशन पे आप यदि देखना चाहते हैं फ्यूज्ड है, पर बाहर से यदि स्टिग्मा बाइलॉब्ड है तो बाइकार्पलरी हो गया, ट्राइलॉब्ड है तो ट्राइकार्पलरी हो गया, टेट्रालोब्ड है स्टिग्मा तो टेट्राकार्पलरी हो गया और पेंटालोब्ड है, 5 लोब बनी हुई है। Thus condition will be showing that such kind of ovary or such kind of gynoecium will be pentacarpus. By counting the stigma lobes we can understand the carpellary types of gynoecium. यानी कि we can say the how much carpels are present in a gynoecium. Gynoecium में कितने carpels मौजूद है? Is that clear? Things are clear बच्चा? स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो? जल्दी से लो। डन। अब हम देखें ऑल ओवर द मोरल, व्हाट इज द ऑल ओवर थिंग्स। हमने 4 रूल्स कर लिए एक साथ से। अब वो 4 रूल्स में क्या क्या चीज हमने कर ली है, सीक्वेंस मैंने बनाया जाए तो अपन का सीक्वेंस क्या क्या हो जाएगा। ध्यान दो, मैंने स्टार्ट सेशन के अंदर जब ये आपका इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, वो बताई थी मैंने ब्रैक्ट। उसके बाद मैंने बताया था उसका सेक्सुअलिटी, यानी बाय सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के बाद बताया था मैंने उसकी सिमेट्री। सिमेट्री के बाद बताया मैंने कैलेक्स। उसके बाद बताया कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड फाइनल अभी बताया गाइनोशियम। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ब्रैक्ट को हम BR से शो करते हैं, BR। सेक्सुअलिटी को हम शो करते हैं या तो ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे। सिमेट्री को हम शो करते हैं या तो ऐसे या फिर ऐसे। कैलिक्स को शो कर रहे हैं K से, कोरोला को शो कर रहे हैं C से, एंड्रोशियम बाय कैपिटल A एंड गाइनोशियम बाय कैपिटल G। ये इस तरह से मेंशन कर रहे हैं, राइट। अब गैमो फॉर्म आ रही है, फ्यूज फॉर्म में है या फ्री फॉर्म में है, उसको हम उसके हिसाब से शो करेंगे, राइट। तो इस तरह का पर्टिकुलर यदि मैं बात करूं एक फ्लावर की, सपोज कीजिए मैंने एक फ्लावर की बात करी चाइना रोज। चाइना रोज फ्लावर को मैं मेंशन करना चाह रहा हूं तो कैसे मेंशन करूंगा? इस पोजीशन के अंदर उस पर ब्रैक्ट है तो मैं लगा दूंगा BR। उसके बाद सेक्सुअलिटी की बात करूं तो वो क्या हो गया, सेक्सुअलिटी के अंदर आ जाता है तो वो बाई सेक्सुअल है। सिमेट्री की बात करूं तो वो हो जाता है सिमेट्रिकल,
like this. Then after calyx, calyx के बाद 5 हो गया, corolla 5 हो गया, corolla 5 हो गया, ये calyx है आपस में, ये दोनों फ्री हैं. Androecium, infinitive androecium, और they are formed in a cluster form, jointed form. Gamoadelphous बोलेंगे उसको. और gynoecium हो गया pentacarpellary, ovary superior, they are fused in position. So like this we can mention the floral formula.